They call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. The China question. Look, my understanding of what the Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. We have to take the disengagement process forward. And I have made it very clear, frankly, publicly as well, and you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. You know, I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. Thank you, sir. Listen, before, in the interest of efficiency, please do not repeat similar questions or try to come back to it. I think, so I'll take fresh questions on that. Maha? Yeah. Sir, Maha Siddiqui from NDTV. Sir, how does India view being part of an organization which is now largely being viewed as an anti-West grouping? Yeah, Neeraj? सर, नीरज हूं, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा श्रीनगर में जो पर्यटन के मसले पर बैठक हो रही है, वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा। इस स्टेटमेंट को भारत कैसे देखता है? देखिए, स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जवाब दे चुके हैं। मैं सभी जवाब दूंगा। यस सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जयशंकर प्रेस से बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राजौरी के खंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। केसरी हिल के इलाके में किया जा रहा है ऑपरेशन। तरंतर इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ और इस इनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह समेत दीगर आला अफसरान भी इनकाउंटर साइट पर मौजूद रहे। और फोन लाइन पर इस वक्त अपडेट के लिए हमारे नुमाइंदे शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? शक्ति, हेलो शक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दें, राजौरी का एक खंडी इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फिलहाल गोलीबारी फायरिंग वहां पर बंद है और जो आतंकवादी वहां छुपे हैं वो इसी इलाके में मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा मुहासरा कर रखा है। कुछ मकान वहां पर मौजूद है, उन मकानों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं
और रात का वक्त हो गया अंधेरा, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन वहां पर अभी फिलहाल रोका हुआ है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स फरार हो गए हैं, लेकिन मुहासरे में है ऐसा लगता है फोर्सेस को, और फोर्सेस ने अपनी नजरें वहां पर जमा रखी हैं ताकि मिलिटेंट इस इलाके से बाहर न जा सकें। तो राजौरी का एक कंडी इलाका है केसर हिल, जहां पर यह ऑपरेशन मुहासरा और तलाशी के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें फौज के 5 जवान शहीद हो गए और फोर्सेस की तादाद को काफी बढ़ाया गया था ताकि वक्त रहते उन मिलिटेंट्स को ढेर किया जाए। और जिस इलाके में वो मौजूद हैं फोर्सेस वहां तक पहुंची जरूर हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ उसका फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन इलाके से बाहर नहीं गए, फोर्सेस का अपना कहना है। और फोर्सेस अपने इस ऑपरेशन को आगे जारी रखेगी। रात का वक्त है, फायरिंग का तबादला फिलहाल जो है रुका हुआ है और इस इलाके को मुहासरे में लेते हुए फोर्सेस ने अपनी निगाहें जमाए रखी है ताकि मिलिटेंट इस इलाके से बाहर न जा सके। हालांकि घना जंगल है और कुछ मकान भी वहां मौजूद है। फोर्सेस को यह खदशा है कि मिलिटेंट उन घरों में घुसकर घर वालों को धमका सकते हैं, बंदूक की नोक पर उन्हें निशाने पर लेकर बचने की वो कोशिश कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इलाके के अवाम को कोई नुकसान न पहुंचे। फोर्सेस को अपनी जिम्मेदारी है उसको देखते हुए फोर्सेस इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर जैसे मिलिटेंट फरार हुए, लेकिन फोर्सेस ने इस इलाके को अभी नहीं छोड़ा है। फोर्सेस अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, पूरे इलाके को मुहासरे में रखते हुए नजर रखी हुई है फोर्सेस ने, ताकि मिलिटेंट उस इलाके से फरार न हो पाए। तो लगातार हम आपको इसका अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम अपने नुमाइंदे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो चुका है और फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई को रोका हुआ है, लेकिन फोर्सेस उस इलाके में अभी भी मौजूद हैं ताकि मिलिटेंट उस इलाके से फरार न हो पाए। घना जंगल है, फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल है रात के वक्त तलाश करना, और वहां मौजूद जो मकान हैं उन इलाकों में रहने वाले मकीनों की हिफाजत भी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, जिसकी बिना पर फोर्सेस ने फिलहाल फायरिंग को रोका हुआ है ताकि मिलिटेंट किसी को कोई नुकसान मजीद न पहुंचाए। काफी नुकसान फौज को पहुंच चुका है, 5 जवान शहीद हुए हैं। आला अहदेदार भी मौके वारदात पर मौजूद रहे और फोन पर एक बार फिर हम जोड़ेंगे हमारे नुमाइंदे शक्ति। इस वक्त क्या अपडेट आप दे रहे हैं, क्या सिचुएशन है इनकाउंटर की जगह पर? तो अंधेरा जो है वो पड़ने वाला है और इस पूरे इलाके में जिस तरह से सुबह से जो सर्च है वो भी बराबर चल रही है और इस वक्त जो है घरों में तलाशी जो है वो की जा रही है। जो नजदीक के घर हैं जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर के नजदीक के जितने भी घर हैं तमाम घरों की तलाशी जो है वो की जा रही है। अभी अभी जो डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज है वो यहाँ से निकल चुके हैं, एडीजीपी और डीजीपी इससे पहले निकले हैं और हालांकि अदर ऑफिसर जो हैं, बाकी ऑफिसर जो हैं पुलिस के, सीआरपीएफ के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पूरे इलाके में अंधेरे की वजह से अब सर्च में है थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन घरों की तलाशी जो है इस वक्त पूरे एरिया में की जा रही है। और जो लिंक रोड है उनकी गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो इस लिंक रोड पर बंद की है वो, और लोगों को ये सलाह दी है कि वो घरों से बाहर रात को भी ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें। जी शक्ति, जिस तरह से घरों की तलाशी हो रही है इस इलाके को क्या फोर्सेस ने मुहासरे में अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा है, इसका फायदा उठाकर वो फरार ना हो? बिल्कुल, ये जो वाकया यहाँ पर हुआ है इस वाकये के नजदीक जो घर हैं कुछ ही घर हैं इस एक एरिया में, बाकी जंगली इलाका है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और पहाड़ी एरिया है, तो कहीं ना कहीं रात को वो इन घरों के अंदर दाखिल ना हो, कहीं नाले में वो हो सकते हैं या कहीं आगे पीछे। हालांकि पूरे एरिया की तलाशी तो ली जा रही है लेकिन अंधेरे की वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन घरों की तलाशी इसलिए ली जा रही है कहीं ना कहीं वो रात को अगर कहीं घरों में ना आ जाएं और घरों के जितने भी लोग हैं जो घरों के अंदर हैं उनको ये सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई नकलो हरकत वो देखें, फौरी तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को दें और पुलिस जो है फौरी तरह से इस एरिया में अलर्ट है। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और फौज जो है वो इस पूरे एरिया में अलर्ट है और इस पूरे एरिया में अभी भी जो है वो कार्डन लगाया हुआ है। जी शक्ति, जिस ये इलाका है जहां पर जो उससे सटी सड़क है, रोड है, उस पर जो आम लोगों की आवाजाही है उसको भी क्या बंद किया गया अभी? जी
जी बिल्कुल, आमोद-ए-रफ़त जो है वो बंद किया गया है क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है और लोगों को ये सलाह दी गई है कि घरों के अंदर रहें। हालांकि जब सुबह का जो वाकया हुआ तो उस वाकये के बाद भी दहशत का माहौल था, लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि फायरिंग की आवाज लोगों ने सुनी। जो नजदीक के घर थे वो काफी परेशान थे जब हमारी बात हुई, लेकिन अब भी उनको ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें और बाहर ना निकलें। गाड़ियों की आमोद-ए-रफ़त तो पहले से ही यहाँ पर बंद थी, अब भी जो है वो किसी भी तरह की गाड़ियों की आमोद-ए-रफ़त इस लिंक रोड में देखने को नहीं मिल रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो तैनात हैं और जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो मंगवाई गई है और रात को कहीं आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से फरार न हो, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से अलर्ट है। जी शक्ति, वहां पर एक बहुत ही कम तादाद में मकान है और मकानों के बीच भी काफी बड़ा फासला है, तो ऐसे में फोर्सेस के लिए कितना आसान होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ज्यादा मकान तो नहीं है, लेकिन मकानों की तलाशी कब तक आज शाम में पूरी हो जाएगी? तरह से जो मकान है वो कुछ ही मकान है इस एरिया में, जिस एरिया में इनकाउंटर हुआ। हालांकि इसके पीछे की पहाड़ी है, उसके पीछे जो है वो घर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजदीक के जो घर हैं उन घरों की तलाशी जो है वो शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ही घर हैं। और इस पीछे के इलाके की अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो है वो 2 पहाड़ियां आती हैं और पहाड़ियों के पीछे जो है वो जंगल है, घना जंगल, और जंगल के बाद जो है वो फिर बर्फबारी वाला इलाका आ जाता है, जहाँ हाई रिचेस की मैं बात करूं तो वहां पर बर्फ जो है वो पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को ये भी लग रहा है कि बर्फ की तरफ वो जा नहीं सकते, वो जंगल का फायदा उठा सकते हैं या फिर इन घरों में वो पनाह ले सकते हैं, इसलिए इस एरिया को पूरी तरह से छाना जा रहा है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और घरों के अंदर जो है पूरी तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर बना रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये थे शक्ति मरडबान, तफसीलात दे रहे थे कि घरों की तलाशी फिलहाल आसपास के इलाकों की ली जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, वज़ीर खारजा एस जयशंकर SCO मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हाँ, एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बोला हमला। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की है इंडस्ट्री। लगातार एस जयशंकर पाकिस्तान पर यह हमला बोलते रहे हैं कि दहशतगर्दी का अड्डा, दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है पाकिस्तान। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर यह हमला बोला है। SCO मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद लगातार चल रहा है, इसके पेश नजर पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री है। बड़ा हमला एस जयशंकर का पाकिस्तान पर। The foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari, was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. Is depleting even faster than its forex reserves. So, you know. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।